मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. अतीन्द्रिय आनंद का बड़ा पर्वत है, उसमें एकाग्र होते तो आनंद झरता है. ये धंधे में पड़ा अज्ञानी नया नया दुख का कारण रूप कर्म बांधते हैं, पर आत्मा में एकाग्र होता एम कहते हैं. हम जानू का डॉक्टर ने दवाखाना में खोली बोलवाना हो સવારે આ કર્યું આ કર્યું આ કર્યું આ કર્યું. નવરંગભાઈને ઓપરેશનનું છે એ છે. હવે ધંધાનું હોય ને જમીભાઈ આને ધારદેરીનું છે કલકત્તામાં. એ છોકરા પણ પેલા કરતા હતા ને કરીને હવે નવરા થઈને છોકરા કરે છે. હા, ધારધીર સમજते હે વ્યાજ વ્યાજ ધારધીરના ધંધા પૈસા વ્યાજ ઉપજાવે ધંધામાં. हाँ हाँ, सब जगत का धंधा पाप का है सब. नया कर्म अपराधी का ही धंधा है हम कहते हैं. अरे मोक्ष के कारण शुद्धात्मा को एक क्षण भी नहीं चिंतन करता. रोज सुबह दर्शन पूजन ये थी गए इधर आ गए. आता है असुर से बचने को, पण वो कोई धर्म नहीं. तन मंदिर में जिन जिन એવું નતું ગલ આયા था. हाँ, तन शरीर मंदिर में जिन परमात्मा है, ये परमात्मा तो व्यवहार है. आता है असुर से बचने को, छता वो चीज धर्म नहीं. अरे मोक्ष के कारण आत्मानम बंध का कारण सकल जग अज्ञानी धंधे में पड़ा हुआ अज्ञानी 8 कर्म को नया बांधते हैं. परंतु मोक्ष नाम परमानंद नहीं प्राप्ति, अतीन्द्रिय परमानंद नाम आत्मलाभ, उसका नाम मोक्ष. अतीन्द्रिय परमानंद नो लाभ, उसका नाम मोक्ष. ऐसा मोक्ष का कारण शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी
નહીં ચિંતન કરતા. जी हाँ जी દેવ દર્શન કરી આવીને થઈ ન જાણે, યાત્રા કરી આવીને ધૂળ में है नहीं सुनने. यात्रा तो शुभ भाव है, धर्म क्या है? बराबर देव दर्शन किया दररोज, ये शुभ भाव है, जी धर्म नहीं. होता है, आता है, पर वो धर्म नहीं, ये शुभ भाव है. हा बाहरी आंकड़ों पड़े श्लोक. बराबर ये कहते देखो, मोक्ष का कारण तो शुद्ध आत्मा कहा. मोक्ष का कारण कोई व्यवहार रत्न त्रयी, देव दर्शन आदि यात्रा ही मोक्ष का कारण एम नहीं कहा. हाँ समझ में आया? हाँ. मोक्ष के कारण शुद्ध आत्मा को एक क्षण भी नहीं चिंतन करता. हाँ जी प्रभु तेरी प्रभुता को तो एक क्षण पे नहीं संभालते हैं. અને પામરતા કો 24 કલાક में घुस गई. સવારથી સાંજ સુધી બાયડીના છોકરાના કમાના રવના ભોગ ને મરી ગયો છે મહાત્મા. મારી નાખ્યો એને. એના જીવનનું જીવન, આનંદનું જીવન, એમાં ભાવ મરણ કિયા. बराबर મારી મેં क्या भाई आखिरी. भेद विज्ञान से रहित भावार्थ. भेद विज्ञान से रहित એટલે અર્થાંત राग ने कर्म ने शरीर ने बाह्य लक्ष्मी उससे आत्मा भिन्न है. बराबर ऐसा पर से भिन्न ज्ञान, ऐसा भेद ज्ञान से रहित. जी मूढ़ प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परांगमुख है. अपना शुद्ध आनंद स्वरूप भगवान उसकी एक भावना से विमुख है. इसलिए शुभ कर्मों को जीव करते हैं. एक क्षण पर निवृत्ति लेवी हो तो લઈ શકે નહીં. અને નિવૃત્તિ લે તો આ ભગવાનના દર્શન નહીં. એક કહ્યું તો અમારે પાલે દુકાનદારો બધા, હું એમ દુકાનમાં હતા, ઘરની દુકાન હતી. એ આપણે તો ગામમાં સાધુ આવે એટલે દુકાન છોડી દઈએ, દુકાનમાં નહીં. બીજા અમારા બધા ભાઈઓ ને ભાગીદાર આખો દી સાધુ ગામમાં આવે સામું ન જોવે. 8 વાગે નવરા થઈ નામા મામા લખી પછી જાય. આ 64-5 ની વાત હે, સંબત 64-65. સાધુ કે આવ્યા રાતડિયા સાવ આવ્યા એમ કે એવા ધંધા 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 ધંધો ચાલે, ઘરાક હોય એમાં શું છે. મને ધૂળમાં પણ સાધુ ગામમાં આવ્યા હોય, સાંભળવા નહીં, દેવ દર્શન ત્યાં દર્શન કરવા નહીં, એવું છે. હે હું તો ભગત કહેવાતો ને પહેલેથી નાની. હું તો સબ નિવૃત્તિ, આપણે દુકાન ગામમાં સાધુ આવે પછી દુકાન બેસવાનું નહીં, એની પાસે એને આર પાણી દેવું હોય. ઘરમાં અમારે 30 માણસ હતા ને, મોટી દુકાન ને 30 માણસ હતા. તે આહાર પાણી જો કોઈ ઘણી હોય મારે સાધુ લઈ જાય, બધું આહાર પાણી લઈ જાય. પણ આ લોકો 8 વાગે 9 વાગે રાતના નવરા થાય, દિવસે સામું ન જોવે. આ ધંધા આ તે એ તો કે છે ધંધા આજે અજ્ઞાની તો મૂંડ તારા આત્માની સન્મુખ નો વિચારે નથી તેરે. આ તો સંતોને ક્યાં ન્યા પડી પરની, ક્યાં પરત ને ઠીક પડશે કે નહીં ઠીક પડે. હે
ધંધે વાળે જાણે ધંધાના દુઃખ ને ભાન ક્યાં છે એને? હા, એક વાર ભાઈ એવું બન્યું હતું, અમે માલ લેવા ગઈ છે ને મુંબઈ, ઘર की दुकान, 65-66 ની વાત है, 17 वर्ष की उम्र में 22 वर्ष 5 वर्ष दुकान चलाई थी, छोटी उम्र में 17 से 22। तो माल लेने को गई थी मुंबई, तो एक सेठ था हमारे पालिस का, जहाँ हमें उतरे थे आड़तिया तरीके से, खावा बैठा हम भोजन, टोकरी वागी बाहर फोन फोन वाग्यो ने सेठ उठ्या, મગન ભાઈ હતા, બચારો જડ જેવા ભાઈ, ભાન ન મળે, સહી રૂપા પૈસા એમાં ધૂળમાં હું એટલે ટોકરી વગી દુખ્યા આમ, એટલે પણ ખાતો ખરો કીધું હરખાઈ નો, આ જેના હાટું આમાં હક નથી તમને. હતો મગન ભાઈ પાલિતાણા આવે, મરી ગયા છે હવે તો, ઘણા વર્ષ થઈ ગયા ને, હમણાં હા થોડા વર્ષ પહેલા આવ્યા છે, પણ એ કાંઈ ખબર ન મળે, રળવું બસ, ખાવા ટાણે નવરાજ ન મળે, ટોકરી વાગે બહાર જાય, પણ આટલું ખાતો ખરો જેના હાટું રવાતું થવાનું હક નથી કીધું આજ તમને. સાંભળે આડતિયા હતા ને અમારા ગામના પાસ પાલીજ ના હતા, અરે આવું ધંધો મારો, ફોન આવે ત્યાં ઉઠે ફટ, શું કીધું? પાટલા ક્યાં હોય ત્યાં, ફોન તો બહાર હોય ને, ભીતમાં હતું ત્યાં. હા હા, અરે કીધું આ શું કરે છે, આત્મામાં ખાવા માટે રળે, એ ખાવામાં હક નહીં, એ રીતે નહીં, ખાવા માટે રળે ને ખાવામાં હક નહીં. हाँ ये कहते हैं धंधा में फंसेलो प्राणी मुंड, तेरा आत्मा का एक क्षण पर अंतर्मुख चिंतन करना, अंतर्मुख चीज की निधान क्या है उसका सन्मुख देखना, एक क्षण पर तेरे मिले नहीं. बराबर समझ में आया? है भेद विज्ञान से मूंड प्राणी शुद्धात्मा की भावना से परामुख, इसलिए शुभाशुभ के मुंह का बंद करते हैं. जो शुद्धात्मा थी विमुख, चाहे तो पुण्य भाव हो के पाप हो, दया दान व्रत भक्ति पूजा ना पुण्य भाव, ये पण शुद्धात्मा की विमुख है. शुद्धात्मा की भावना से परामुख है. समझ में आया? इसने शुभाशुभ कर्म को बंद करता है और आनंद ज्ञान आदि सर्वमोक्ष का कारण. आनंद ज्ञान आदि सर्व मोक्ष, मोक्ष ने व्याख्या करी, कैसा मोक्ष है? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत स्वस्थता, ऐसा जो मोक्ष, उसका कारण जो वितराग परमानंद स्वरूप निःशुद्धात्मा. समझ में आया? मोक्ष એટલે क्या? जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत प्रभुता प्रकट हो, उसका नाम मोक्ष. ऐसा जो मोक्ष का कारण, जो वितराग परमानंद रूप निःशुद्धात्मा का, देखो एनु कारण वितराग परमानंद निःशुद्धात्मा, उसका कारण है. हाँ, परमात्मा प्रकाश पण. मोक्ष अनंत आनंद ની પ્રાપ્તિ, પર્યાયમાં અનંત અતિન્દ્રિય આનંદ की प्राप्ति रूपी मोक्ष.
ये मोक्ष का कारण शुद्धात्मा है। जी हाँ। वितराग परमानंद रूप निशुद्धात्मा इतिकाली वितराग परमानंद रूप निशुद्धात्मा या की चीज समझ में आया? आखिर चीज क्या है? ये क्यों कहते आगे भाई तुम पूर्ण वस्तु है, भगवान तेरे खबर नहीं पाता। नीज आनंद ज्ञान आदि सर्व मोक्ष का कारण वितराग परमानंद रूप निज शुद्धात्मा मोक्ष का कारण वितराग परमानंद रूपी निज शुद्धात्मा। उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता भगवान है। एक क्षण पण तेरा तेरे विचार नहीं। भक्ति ने पूजा ની વાત નથી हो। भक्ति पूजा तो राग है। अंतर आत्मा नो क्षण मात्र पर निर्विकल्प आनंद ना विचार तेरे में नहीं आता। धर्मी को सम्यक दृष्टि को अपना विचार हो, अनुभव हो तो स्व आवश्यक आता है। दया पूजा भक्ति पर वो भाव शुभ राग है। अंतर अनुभव दृष्टि पूर्वक वो राग है। એટલે અહીંયા तो मोक्ष का कारण वो राग नहीं। मोक्ष का कारण निशुद्धात्मा ये मोक्ष का कारण। उसकी एकाग्रता हो तो वो है मोक्ष का कारण, पर निशुद्धात्मा ही मोक्ष का कारण। समझ में आया? एक क्षण भी विचार नहीं करता। सदा ही આવ્યો ને ભાઈ જો 24 કલાક વારંવાર કહે છે ને બાયડીને છોકરા રમત્યુમાં એમાં અને ધંધામાં ને 6-8 કલાક ઊંઘમાં। તો વિચાર એટલે એકાગ્રતા અત્યારે ज्ञानी पर्याय में एक किला पूर्णानंद का गिने बनाना ये उसका विचार है। जिनी बात से भाई नहीं सविकल्प द्वारा इतने सविकल्प हो उसमें से जाना है निर्विकल्प में ही। रसपूर्ण चिट्ठी में आया ने रसपूर्ण चिट्ठी सविकल्प द्वारा निर्विकल्प। उसका अर्थ पहला विकल्प आता है कि मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, ऐसा। पीछे छोड़कर अंतर ध्यान ये अभेद ध्यान है। रसपूर्ण चिट्ठी थी साधक साधक नहीं, पर वो कोई साधक नहीं, उसको छोड़कर अंदर में बात ऐसी है। बराबर अंतर उठ रहे हैं नहीं आता एમાં હવે છે ને રસपूर्ण चिट्ठी। धर्मात्मा अपना ध्यान करने को प्रयत्न करते हैं जहाँ पहले ऐसा विकल्प आया राग, मैं शुद्ध हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, आनंद हूँ, ऐसे करते हैं रोमांच उठते हैं। उसमें है ये विकल्प भी जब छूट जाता है जब अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। ये धर्म है। આવી ધર્મની વ્યાખ્યા ક્યાંથી કાઢી? હવે અમે તો ધર્મ દયા પાડી, વ્રત પાડ, તપસ્યા કરવી, ભક્તિ કરવી, यात्रा करवी, થઈ ગયું जाओ। सुन तो सही, ये तो सब विकल्प राग है। ये पुण्य बंध का कारण है, धर्म नहीं। भगवान तेरी चीज अंदर आनंद से भरी है। समझ में आया? शकरकंद का दाखला भी घनी बार। शकरकंद समझे छे? हाँ, शकरिया कहते हैं हमारे, तुम्हारे हिंदी में शकरकंद कहते हैं।
तो शकरकंद में जो लाल छाल है ऊपर, हाँ जी, ये लक्ष्मी छोड़ी दो तो अंदर में शकरकंद है सारा। हाँ जी, शक्कर नाम साकर की मिठास का पिंड है, बराबर, शकरकंद। हाँ जी, ऐसे आ भगवान आत्मा ये पुण्य ने पापना विकल्प की छाल लक्ष्मी छोड़ दे तो अंदर अतीन्द्रिय आनंद का कन तेरी चीज है। कोई नहीं सुना नहीं है, बेचारा सुन करे। बराबर, समझ में आया? એમાં શકરકંદ માને એને માં, શક્કરની મીઠાશ, शकरकंद એટલે સાકરની મીઠાશ का पिंड है ये, जी, हाँ जी, लाल छाल चली है उसमें से। हाँ जी, એમાં भगवान आत्मा पुण्य ने पुण्य पाप का विकल्प जो उठते हैं ये छाल है लाल, उसके पाछળ अतीन्द्रिय आनंद का कण भगवान है, जी, ये आत्मा। ऐसे आत्मा को शुद्धात्मा कहते हैं। हाँ जी, ये शुद्धात्मा परमानंद निशुद्धात्मा का उसका एक क्षण भी जो है ना, ये परमानंद रूप वितराग परमानंद रूप ऐसा आत्मा निशुद्धात्मा है ना। हाँ हाँ हाँ, उसका एक क्षण भी विचार नहीं करता, सदा ये आर्त ध्यान में लग रहा है। हाँ हाँ, बराबर, આ ધંધા કરવાના, આના કરવાના, આ કરવાના, આ કરવાના. લડકી અબળી હોય એ તો લગ્ન કરના, છોકરા બડા હોય તો સારી કન્યા, આર્ત ને રુદ્ર જાને આખો દી। समझ में आया? मुनिराज क्या कहते हैं देखो, सदा ही आर्त रुद्र ध्यान में लग रहा है, हाँ जी, ये सारा ये रस है। बराबर, हाँ हाँ, अपना शुद्ध चैतन्य मूर्ति तेरी चीज महान वस्तु पड़ी है, ये सन्मुख का तो विचार क्षण पर नहीं लेते, बराबर, उससे विमुख का विचार रात में रौद्र ध्यान सदा करते हैं, जी, आ क्षण नहीं करते हैं, बोला सदा करते हैं कहते हैं। बराबर, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, वो उपदेश कई जाता क्या अरे जैन धर्म नो છે આ? अरे भाई तने खबर है कि बापू जैन वितराग परमात्मा जी, जिनवर देवे तो तरण का अवतरण नुक दिखा, हाँ जी, अनंत आनंद की प्राप्ति किया, जी, हाँ, उसके मुख से इच्छा बिना वाणी निकली, ये वाणी को ही शास्त्र कहते हैं। बराबर, हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ जी, 121 हुआ, हाँ जी, 122 आगे इसी बात को दृढ़ करते हैं। हाँ जी, जोणी लखई परिभमई अपा दुखो सहंतु पूत कलताई मोहियो जावन नाम मानतु। हाँ हाँ हाँ, यावत जब तक सबसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं, सबसे श्रेष्ठ का अर्थ आत्मज्ञान नहीं है। આ વકીલાતના જ્ઞાન ને દવાખાના શું કહેવાય ડાક્ટરના જ્ઞાન ને ये सब कुज्ञान है, ये ज्ञान नहीं। हाँ 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 हाँ, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान। हाँ हाँ हाँ, राग से भिन्न पड़ के अपना आत्मज्ञान, हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। बराबर, समझ में आया? जी, हाँ, ये सबसे वेद ज्ञान पर से नहीं, जी, हाँ जी, ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। तब तक यह जीव पुत्र कलत्र सोई रहा, पुत्र स्त्री दीकरा लड़का में मोहित हुआ, जी, पर चीज की अपनी चीज है ही नहीं, अपनी में आता ही नहीं, ये चीज तो पर है, तो बराबर, ये स्त्री पुत्र तो पर द्रव्य है। हाँ हाँ हाँ, स्वद्रव्य में क्षण मात्र पर विचार नहीं करते हैं, परद्रव्य में मोहित हुआ
मूंड पर्द्र में आ स्त्री मेरी पुत्र मेरा ने ऐसा मेरा मरी गयो के मारी ने कहा क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे श्रीमदे कहीं 100 વર્ષે યાર્તને રૌદ્ર ધ્યાનમાં પ્રભુ તારું મૃત્યુ થાય છે તારું શુદ્ધાત્માનું જીવન તે ત્યાં ટકતું નથી રહેતું નથી સમજ में आया અરે આવી વ્યાખ્યા હવે આવું માણસ કે બિચારા નવરા હોય નહીં હવે એમાં 2 ઘડી સાંભળવું આવે એમાં આવું આવે બાપુ માર્ગ તો આ છે ભાઈ બીજા રાજી કહી દેશે તમને દયા પાડી વ્રત પહેલા અપવા કર્યા ને ધર્મ કર્યો મરી જઈ ત્યાં ધર્મ નથી ભાવ મરણ હે એટલે अर्थात शुद्ध आत्मा आनंद का कन प्रभु उससे विरुद्ध भाव में प्रेम से रुचि से पड़ा पूर्णानंद जीवन जो टकतु पूर्ण है उसका अनादर किया उसका नाम हिंसा उसका नाम मरण समझ में आया वाते वाते फिर आतो दुनिया में कई घाले धर्म ने नामे नाई के धर्म आओ अरे क्या मेल खाया में पुत्र कड़त स्त्री आदि से ने मोहित आदि को से मोहित हुआ मारी लड़की है LLB में पास थी से ऐसे में पास थी एम खुशी थी जगह धूल में ये नहीं तारी लड़की के थी आत्मा ने लड़की क्या न बाप क्या समझ में आया छोड़ियो છોકરો ઘરે પૂછે છે કે મારા સાહેબ કહેતા તમે બાપ નથી તો સાચી વાત છે બાપ કેવો નીકળે કે આત્મા ને आत्मा ने राग नहीं तो बाप ने दीकरो क्या से आया आई बात है बापू जिनवर परमात्मा तीर्थंकर देव अनंत तीर्थंकरो नो आ हुक्म है समझ में आया मोहित हुआ दुख सहमानो अनेक दुखों सहता हुआ દીકરા હાટું સ્ત્રી હાટું ક્યાં નાખી દેવા અમારે પણ ક્યાં તારા હતા નાખી દે हमारे नभावा तो पड़े कि नहीं किसको नभावे ये तो पद्रव है स्वतंत्र उसका शरीर भी उसके कारण से रहता है उसका आत्मा उसके कारण से रहता है तेरे कारण से है એવામાં અનેક દુઃખો સહતા હોવા રાગ ને દ્વેષ કરી દુઃખી સહતા આખો દી રાગની પીંજણ પીંજે પીંજણ સમજે रोई डोरा निकालते हैं ना एक પછી એક રેંટિયામાં છે એમાં એક પછી એક વિકલ્પના રાગ ને અર્ધ ધ્યાન રુદ્ર ધ્યાન નહીં પીંજણી પીંજે अरे भगवान तारे माटी तेरे वक्त नहीं समझ में आया सूक्ष्म बात है भगवान दुनिया ने तो कोई लागे ऐसा यहाँ तो व्यवहार लूप हो जाता है बापू व्यवहार ही राग होता है पर ये राग आत्मा का धर्म नहीं बराबर अरे प्रभु शू करे व्यवहार है निश्चय से विरुद्ध है और उसका फल विरुद्ध है राग से भिन्न निश्चय वस्तु भिन्न है उसका फल भिन्न आनंद है व्यवहार का फल दुख है ये बात आखिरी पड़ी भाई मानस ने कहनी आज बापा चर्चा करे बात करे आई मुनिराज एम कहते हैं प्रभु तेरी आनंद शक्ति ने नाथ प्रभु
તે તરફ તેરી સન્મુખતા કા ક્ષણ બી મિલે નહીં તેરે, અને વિમુખ એસા સ્ત્રી પુત્ર માટે સારા દિવસ ને રાત એને માટે કાઢ્યા. સમજ में आया? हाँ, ये दुख सहन माना योनि लक्षणानी 84 लाख योनियों में फटकता फिरता है. हाँ, अनंत अनंत बार ऐसा नरक का भाव, स्वर्ग का आनंद किया. भगवान तो ऐसे फरमाते हैं कि जितना नरक का भाव किया उससे असंख्य गुणा स्वर्ग किया, अनंता किया. क्या किया? सबसे थोड़ा मनुष्य भोग किया अनंता, उससे असंख्य अनंत गुणा नरक का किया, और उससे असंख्य गुणा 3 स्वर्ग का किया. एक नरक का असंख्य स्वर्ग का, ऐसा अनंता नरक अनंत स्वर्ग असंख्य गुणा अनंता. तो पुण्य बिना स्वर्ग में जाते हैं? ऐसा पुण्य भी अनंत भाई नरक करता है, अनंत भाई पुण्य कहते हैं, एम कहते हैं. जी, हाँ, तो उससे कोई जन्म मरण मिटे नहीं. भटकता फिरता है. से यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.